الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، اسلامی بھائیوں، پیاری ماں بہنوں، ہمیں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ وہ ہم تمام لوگوں کا خالق و مالک ہے، ہر قسم کی عبادت کا مستحق ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خاص طور پر نبی آخر زمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو آخری نبی ہیں، ہم اور آپ جن کے امتی ہیں۔ اسلامی بھائیوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے کو ہے۔ اسی مناسبت سے خطبہ بھی آپ کے سامنے رکھا جائے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے حوالے سے، آپ کی ذات کے حوالے سے ایک گوشے پر روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پر بہت سارے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، اور جب ہم آپ سے محبت کرنے لگیں گے یا ہم نے محبت کرنے کا دعویٰ کر لیا تو اس کے بہت سارے تقاضے ہم پر آ جاتے ہیں۔ ان تقاضوں کو دیکھنا اور ان کو سمجھنا ضروری ہے تاکہ ہمیں اندازہ ہو سکے کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا خوش فہمی میں ہے کہ ہم محبت کرتے ہیں۔ معیار کیا ہے محبت کرنے کا، تقاضا کیا ہے، پہچان کیا ہے، کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ دنیا کا کوئی مسلمان ایسا تو نہیں کہے گا کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتے، دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن جو اس کے تقاضے ہیں اس سے بہت کم لوگ پورا اتر پاتے ہیں، اس کے شرائط کو کم ہی لوگ پورا کر پاتے ہیں۔ جب ہم نے اللہ کے نبی اور اپنے نبی سے، اللہ کے بھیجے ہوئے رسول سے محبت کا ہم نے دعویٰ بھر لیا، دم بھر لیا، تو سب سے پہلا جو تقاضا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اب آپ کی بات کو مانیں، یعنی اطاعت، جس کو اطاعت کہا گیا شریعت میں، کہ اطاعت کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے لوگو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اس میں رسول کی اطاعت اتنا اہم ہے کہ اللہ نے رسول کی اطاعت ہی میں اپنی اطاعت کہہ دی، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی، وہ اللہ کی اطاعت کی۔ نبی کی بات ماننے کا حکم اللہ ہی نے دیا ہے۔ اللہ کے بارے میں، اللہ کی ذات کے بارے میں، اس کے احکامات کے بارے میں اللہ کے نبی نے بتایا، اس لیے دونوں کی اطاعت لازم ہو جاتی ہے، ضروری ہو جاتی ہے۔ لیکن نبی کی اطاعت اس معنی میں اہم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی اطاعت ہی کو اپنی اطاعت کہا، تو اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا یہ محبت کا پہلا تقاضا ہے۔ اطاعت اور اتباع تھوڑا قریب قریب لفظ ہیں لیکن معنی تھوڑا الگ الگ ہے۔
इताअत में ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात बताई या जो हुक्म दिया उसको मानना। अल्लाह के रसूल ने कहा नमाज पढ़नी है तो हम नमाज पढ़ने लगे, ये है इताअत। इससे दो कदम आगे इत्तिबा है। इत्तिबा का दायरा थोड़ा बड़ा है। इत्तिबा में वो चीजें भी आ जाती है जिससे आपने हुक्म नहीं दिया, यानी सुन्नतें आपकी आ जाती हैं, सुन्नतें भी अपनानी है, और वो तरीका भी आ जाता है जिस तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन चीजों को अदा किया है। नमाज हम पढ़ रहे हैं, इताअत है। नमाज नबी की तरह पढ़ेंगे, वो इत्तिबा है, और इत्तिबा भी जरूरी है। अल्लाह की मोहब्बत इत्तिबा से हासिल होती है। नमाज तो सब पढ़ रहे हैं, सबकी नमाजें अलग है, नबी एक है, शरीयत एक है, नमाजें अलग है। नमाज से पहचान हो जा रही है, और उससे सितम यह है कि अब तो टोपियों से भी पहचान होने लगी कौन किस फिरके का है, मसलक का है। बड़ा अफसोस होता है इन छोटी छोटी चीजों पर गौर करें। इताअत पहले नंबर पर जरूरी है, और अल्लाह के रसूल की इताअत ही में अल्लाह की इताअत है। इसकी मैं दो हदीस बयान करता हूं। हज़रत फातिमा बिन्त कैस कहती है कि मेरे शौहर घर से बाहर गए हुए थे, वहीं से उन्होंने तीसरी तलाक लिख के दे दी। तीसरी तलाक, कुछ नानो नफका भी भिजवाया, 5 सा खजूर है, 5 सा जौ, अपने नौकर से गुलाम के हाथ से भिजवाया, तलाक भी भिजवाया, और कुछ खजूर और जौ भी भिजवाई। तो हमने ये 5 सा और 5 खजूर, 5 सा 5 जो देखा, 5 सा जौ खजूर, तो मुझे लगा कि मेरे हक में कमी है, इतना कम, इतना ही मेरा हक बनता है नानो नफका। अल्लाह के रसूल के पास पहुंच गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए और कहा कि देखिए हमें 3 तलाक दे दिया, तीसरी तलाक दे दी। 3 तलाक मतलब वो नहीं कि एक बार भी 3 तलाक, तीसरी तलाक थी। 2 से पहले वाक़ई हो चुकी थी, स्टेप बाय स्टेप उनकी जिंदगी में, उससे पहले वो तीसरी तलाक थी। उसके बाद रुजू का हक भी नहीं रहता, निकाह से भी निकल जाती है, वो नानो नफका भी नहीं रहता। उसके पहले जो 2 तलाकें हैं वो तलाक रजई है, रुजू का हक भी रहता है, और शौहर के जिम्मे नानो नफका भी रहता है। तीसरी तलाक के बाद नानो नफका नहीं रहता। अगर वो दे दे बच्चे का ख्याल करके, बीवी का ख्याल करके, तो उसकी एहसान है, उसकी इंसानियत है। वो ये सोचे मेरा हक मारा जा रहा है। फातिमा बिन्त कैस पहुंचे अल्लाह के रसूल के पास और कहा ये देखिए मेरे शौहर ने बस इतना सा हमें दिया है नानो नफका। तो अल्लाह के रसूल ने कहा, और ये भी कहा, वो कह रहे हैं कि तुम्हारा हक ही नहीं मेरे ऊपर। तो अल्लाह के रसूल ने कहा सही कहा, अब उसके ऊपर तुम्हारे नानो नफका का कोई हक नहीं है, अब तुम उसके घर में भी नहीं रह सकती हो। तीसरी तलाक के बाद शौहर के घर में नहीं रह सकती थी, वो तलाक खत्म, वो निकाह ही टूट गया, तो अब वहां नहीं रहना है। अल्लाह के रसूल ने कहा तुम जाओ उम्मे शरीक के यहाँ रहो। फिर उसके बाद बुलाया, कहा उम्मे शरीक के यहाँ मत जाओ, उम्मे शरीक ऐसी औरत है कि उनके हमारे साहबे कराम का आना जाना लगा रहता है, तुम अब्दुल्लाह बिन उम्मे मक्तूम जहाँ चले जाओ, और नाबीना साहबी हैं, वहां तुम अगर इजाफी कपड़े ना भी पहने रहोगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वहां इद्दत पूरी करो, इद्दत पूरी हो जाए तो मुझे बताना। इद्दत पूरी होने के बाद आए, अल्लाह के रसूल को खबर दिया, और सिर्फ यही नहीं बताया कि इद्दत पूरी हो गई, ये भी बताया कि किनका किनका पैगाम आया। क्या अल्लाह के रसूल 2 पैगाम आए हुए हैं निकाह के, मुआविया बिन अबू सुफियान का आया हुआ है, और अबू जहम का आया हुआ है। 2 लोगों का आया हुआ, मैं क्या करूं, इनसे निकाह करूं। अब वैसे तो आदमी किसी के बारे में बिना पूछे बताए तो गीबत हो जाती है कि ये ऐसा है ऐसा है, लेकिन अगर कोई पूछ रहा है, रिश्तेदार अगर रिश्ता लगा रहे किसी घर से, अब आकर के आपसे पूछ रहा है, रिश्तेदार है, उतना बैठना आपका है, पड़ोस में रह रहे हैं या उस मस्जिद से जुड़े हुए हैं, अगर कोई पूछता है तो फिर वो एक अमानत बन जाती है। एक खैरखाही के नाते सारी खूबियों और खामियों को बताना पड़ेगा। अल्लाह के रसूल ने कहा जहां तक अबू जहल की बात है तो फला यज़उ असाहु मिन आतिक़िही, वो अपना डंडा अपने कंधे से नहीं उतारते, मतलब बहुत सख्त है, बहुत सख्त है, सख्त मिजाज के। व अम्मा मुआविया फसुलू, और जहां तक मुआविया का मामला है वो तंगदस्त है, उनका हाथ खाली है। फनकिही उसामा बिन ज़ैद, तुम ऐसा करो उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। ये तीसरा नाम अल्लाह के रसूल ने पेश कर दिया। 2 वजह बता, दोनों की वजह बताई कि ये कमी है, और अगर गुजारा कर सकते तो ठीक है, नहीं तो फनकिही उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो। तो पहली बार उन्होंने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार जब अल्लाह के रसूल ने कहा कि उसामा बिन ज़ैद से निकाह कर लो, तो अब उन्हें ये ख्याल हुआ कि ऐसा तो नहीं कि हुक्म है और उसकी नाफरमानी, ये इताअत तो वाजिब है, नाफरमानी में गुनाह मिले। तो फिर उन्होंने सवाल किया, फातिमा ने सवाल किया अल्लाह के रसूल, ये आपका मशवरा है या हुक्म है? तो समझती थी कि हुक्म होगा तो फिर टाला नहीं जा सकता,
हुक्म है तो मानना पड़ेगा, वो इताअत होगी। का हुक्म है या मशवरा है? तो अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, ये मेरा मशवरा है, बल ताअतुल्लाह ताअतुर रसूल व ताअतुल्लाह खैरुल लकी, ये मशवरा है, लेकिन अल्लाह की इताअत और उसके रसूल की इताअत में तुम्हारे लिए भलाई है। अब देखिए, ये तो अल्लाह के रसूल ही सिर्फ बता रहे थे, यहाँ कुरान में कहीं नहीं हुक्म है फातिमा बिन्ते कैस को कि तुम फला से निकाह करो, कुरान में कहीं हुक्म ही नहीं है। अल्लाह के रसूल का मशवरा था, लेकिन फिर अल्लाह के रसूल ने क्या कहा? ताअतुल्लाह व ताअतुर रसूल खैरुल लक, अल्लाह की इताअत कहा कि अल्लाह के रसूल की इताअत में और अल्लाह की इताअत में तुम्हारे लिए भलाई है। मतलब जो चीजें अल्लाह के रसूल ने वाजिब नहीं की है, इख्तियार दिया है उम्मत के लिए, जो नफिल हो, सुन्नत हो या दीगर अमाल हो जो वाजिब नहीं है, उसको भी अपनाने में खैर है। वो खैर से खाली नहीं, आदमी भलाई से कभी महरूम नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल ने कहा कि बेहतर है तुम्हारे लिए, मशवरा तो है लेकिन इसको अपनाने में बेहतरी है तुम्हारे लिए। फिर उन्होंने मैंने निकाह कर लिया। उसके बाद अल्लाह ने उस निकाह में इतनी बरकत दी कि उस वक्त की हमारे जमाने की जितनी औरतें थी सब रश करती थी मुझ पर। नबी की इताअत और हुक्म में कितनी बरकतें हैं। तो नबी की इताअत अल्लाह की इताअत है। इसी तरह से अब्दुल्ला इब्न मसूद ने कहा लान अल्लाहुल वासिमात वल मुतशिमात वल मुतनम्मिसात वल मुतफल्लिजात तग़यीर अल खल्क़ मुतफल्लिजात लिहुस्न, अल्लाह ने लानत की है गोदना गोदने वाली पर, गोदवाने वाली पर, हुस्न के लिए चेहरे का बाल उखड़वाने वालियों पर और दांत में शिगाफ करवाने वाली पर, जो अल्लाह की फितरत में तब्दीली करती है। ये था उस टुकड़े का तर्जुमा। ये बात उम्मे याकूब एक थी, उनको पहुंची, वो आई और कहा मैंने सुना है कि आप कह रहे हैं कि अल्लाह लानत करता है, लान अल्लाहुल वासिमात वल मुतशिमात, आप कह रहे हैं कि अल्लाह ने लानत की है गोदना गोदने वाली पर, गोदवाने वाली पर, चेहरे के बाल उखड़वाने वाली पर, खूबसूरती के लिए दांतों में शिगाफ करवाने वाली पर और अल्लाह की फितरत को तब्दील करने वाली पर लानत है अल्लाह की। करात मा बैन दुफ़तैन मा वजदतुहा, मैंने दोनों दफ्तियों के दरमियान पूरा नुस्खा पढ़ डाला। दोनों दफ्ती से मुराद वही जो दोनों तरफ लगे होते हैं, जो जिल्द लगे होते हैं कुरान के, मुराद उनका था मैंने पूरा कुरान पढ़ डाला। उम्मे याकूब ने कहा मैंने सारी कुरान पढ़ डाला, ये बात तो कहने लिखी कि अल्लाह ने लानत की है गोदना गोदवाने वाली पर। तो अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा करातीहा वजदतीहा, अगर तुम सही से पढ़ी होती कुरान को तो तुम जरूर इसको पाती। क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी? वमा आताकुमुर रसूलु फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू, क्या तुमने ये आयत नहीं पढ़ी कि रसूल जो तुम्हें दे उसे ले लो, जिससे रोके उससे रुक जाओ? तो नबी ने रोका है, नबी ने लानत की है, तो नबी की लानत में अल्लाह की लानत है। ये इतनी बड़ी बात हम और आप नहीं समझते, फिर वो समझ गए। तो कहा आपकी बीवी भी तो ऐसा करती है। मैं आपने कहा आपकी बीवी के बारे में भी हमने सुना है कि वो भी तो ऐसा करते हैं, बाल लुकवाते हैं। कहा जाके देख लो। देख करके आई तो कुछ नहीं से पाया। और अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने कहा कि अगर वो ऐसा करती, जैसा मैंने इसमें कहा है कि ऐसा करने वाले, अगर वो ऐसा करती तो मैं उनके साथ रहता ही नहीं, उनसे दूर हो जाता है, दूर कर देता हूँ। तो एक तो मोहब्बत रसूल के तकाजे में से जो सबसे अहम चीज है वो इताअत है, और दूसरी इत्तिबा है। नबी की बात माननी है और वैसे माननी है। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जितना नमाज पढ़ना अहम है उतना ये है कि कैसे पढ़ना है। सिर्फ नमाज से काम नहीं चलेगा, नमाज़ नबवी होगी तब होगा। नमाजें तो बहुत है, अलग अलग नमाजें हैं, पहचान बना ली लोगों ने नमाज से। नबवी नमाज होनी चाहिए। ये इत्तिबा है कि जैसे अल्लाह के रसूल ने जो काम किया है वैसे ही करना है, वो इत्तिबा है। कोई भी काम, वरना ये है कि वो चीज मरदूद हो जाएगी, वो चीज रिजेक्ट कर दी जाएगी अल्लाह के यहाँ। अगर नबी के तरीके पे नहीं है, उसवे रसूल के मुताबिक नहीं है, शरीयत मोहम्मदी के मुताबिक नहीं है, तो सिर्फ नमाज ही क्या, कोई भी इबादत, कोई भी काम वो मुंह पे मार दी जाएगी हमारे। तो इत्तिबा भी जरूरी है, उसमें अपनी मनमानी नहीं चलेगी। ये कहना काफी ना होगा कि बड़े अल्लामा साहब ने कहा है, बड़े मुफ्ती का फतवा है, या इतने बड़े उलमा के इस पर राय है, अक्सरियत इधर है, सवाब आजम इधर है, ये कहना काफी नहीं होगा। भीड़ में एक आदमी अगर अकेला एक आदमी अगर हक पर है तो उसकी बात मानी जाएगी। जमहूरियत नहीं है कि गधे एक तरफ हो गए तो गधों का प्रधानमंत्री बनेगा। शरीयत है, इसमें हक बात, जिसके पास दलाइल होंगे, जिसके पास कुरान और हदीस से बुरहान होंगे, वो सच्चा होगा, चाहे अकेला हो, एक तरफ चाहे भीड़ ही क्यों ना हो। यही वहम, यही गुरूर, यही बदगुमानी और एहसास बर्तरी मक्के वालों को भी थी। हक नहीं कबूल कर पा रहे थे। थोड़े से तो लोग हैं
नबी के मानने वाले थोड़े से तो लोग हैं ऐसे कहने वाले, वो भी गरीब लोग हैं, कमजोर तबके के लोग हैं, पिछड़े हुए लोग हैं, आटे में नमक के बराबर हैं। अब ये हक पर है कि पूरे मक्के के कितने पढ़े पढ़े लोग, बड़े बड़े शायर, बड़े बड़े उदमा, बड़े बड़े काबिल लोग, उनकी बात समझ में नहीं आई, नौकरों के गुलामों की समझ में बात आई। यही खुशफहमी कि अक्सरियत इधर नहीं है, अकलियत है मोहम्मद की तरफ, कैसे हम बात मान लें, ये खुशफहमी हक से रोके रखी थी। तो इत्तिबा इताअत के साथ साथ इत्तिबा भी जरूरी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम जैसे किया है वैसे ही माननी पड़ेगी उसमें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम मामले में मुकम्मल आइडियल माना जाए। बाप दादा के रस्म व रिवाज ये दलील नहीं हो सकते कि माँ वजदना अलैहि आबाना, ये दलील कुफार मक्का की है, ये दलील काफिरों की है। जब अल्लाह के रसूल कहते थे ऐसा करो तो माँ वजदना अलैहि आबाना, हम यही करेंगे जो हम अपने बाप दादाओं से पाए। ये दलील नहीं हो सकती कि बाप दादाओं को बुजुर्गों को इसी पे पाया है, बुजुर्गों ने वसीयत की है, बाप दादा की यादगार है, उनके रस्म रिवाज है, ये हमारी पहचान है, ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में मुकम्मल आइडियल माना जाए। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए लोगों, पूरी दुनिया वालों के लिए नबी की जात में एक बेहतरीन नमूना मौजूद, सिर्फ नमूना नहीं, बेहतरीन नमूना मौजूद है किसी भी मामले में। इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को इतनी चाहत के बावजूद, इतने मोहब्बत करने के बावजूद उन तमाम हालात से गुजारा जिन हालात से हम और आप गुजर सकते हैं। आपने गरीबी का भी दौर देखा, आपको अल्लाह ताला ने खुशहाली से भी नवाजा। आपने यतीमी के दौर देखा, मुहताजगी का दौर देखा, जब लोग आपके साथ नहीं थे, यतीमी का दौर देखा, बाद में अल्लाह ने आपको पनाह भी दी, उसका भी दौर देखा। आप मक्के में थे तो मातहती का भी दौर देखा, जब आप उस वक्त आपके हाथ में ज़माम इक़्तिदार नहीं था, सरदारी नहीं थी, हुकूमत नहीं थी, वो दौर भी देखा। उसके बाद मदीना पहुंचे, आप सरदार हुए, हाकिम हुए, इमाम हुए, वो नमूना भी मौजूद है। आप बाप भी हैं, आप नाना भी हैं, आप शौहर भी हैं, आप किसी के भाई भी हैं, और ये सारी चीजें ससुर भी हैं, दामाद भी हैं, सारे हर तरह के आए नमूने आपकी जिंदगी में मौजूद है, और हर तरह से गुजारा भी अल्लाह तआला ने आपको। आप बीमार भी हुए, ऐसा नहीं कि आप बीमार भी हुए, आपने बीमारी में कैसे क्या क्या नमाजें कैसे पढ़ी। इसके अलावा हर तरह से एक इंसान की जिंदगी में जितने हालात आ सकते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को हर उस हालत से, हर उस सिचुएशन से गुजारा, ताकि वो मुकम्मल आइडियल बन सके, वरना मुकम्मल नमूना बन ही नहीं सकते थे। कोई भी जिंदगी हमारे उतार चढ़ाव आए, नमूना अल्लाह की जात की जिंदगी, रसूल की जात की जिंदगी में मौजूद होगा, इसलिए हमें वहां देखना जरूरी है। इसके साथ जब बात वाज़ेह हो जाए कि ये अल्लाह के रसूल की बात है, फिर आपको अपनी बात नहीं, सबसे ऊपर नबी की बात होगी, रसूल की बात होगी, वही माननी पड़ेगी, सारी चीजें छोड़नी पड़ेगी। लोगों की परवाह, लोगों, रिश्तेदारों और दूसरे लोग जिनकी वजह से हम बात नहीं कबूल कर पाते, उनको छोड़ना पड़ेगा। दो ही यहाँ ऑप्शन है, या तो अल्लाह उसके रसूल को दामन पकड़ लो, या तो और लोगों का जो अल्लाह उसके रसूल के मोहब्बत में आड़े आते हैं, इताअत में आड़े आते हैं, उनकी बात मानने में आड़े आते हैं। जब ये बात वाज़ेह हो जाए, चाहे खुद पढ़ने से, किसी के सुनने से, या जैसे भी किसी भी तरीके से अगर बात आ गई कि हक ये है, नबी की बात ये है, नबी की और नबी का हुक्म ये है, सुन्नत ये है, फिर कोई चुरा चरा नहीं, कोई चूसरा नहीं रह जाता, कोई हमारे पास इख्तियार नहीं रह जाता। फला वरब्बिका ला युमिनूना हत्ता युहक्किमुका फीमा शजरा बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजम मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। आपके रब की कसम, वो लोग मोमिन हो ही नहीं सकते कि अपने दरमियान कोई इख्तिलाफ पाएं और उस इख्तिलाफ का हल आप कर दें। यानी आप बाहयात थे तब और अब भी अगर आपसे इख्तिलाफ का हदीस के जरिए से हल हो जाए, उसके बाद तो इख्तियार नहीं रहता, ना मेरे पास ना आपके पास, वही हदीस को मानना है। मोमिन नहीं हो सकते लोग, अगर आप फैसला कर दे तो वयुसल्लिमू तस्लीमा, आप फैसला कर दो और मान न ले। फैसला अल्लाह के रसूल को मानना है, मानने के बाद जब फैसला मान लिया तो जो फैसला हो कुरान और हदीस को मानना है, और मजबूरी में नहीं, दिल की खुशी से मानना है। वरना मानना भी किसको मानना ना होगा जब हमारे जबरदस्ती मनवाया जाए या कराहियत होना, पसंदीदगी साथ माने, ये मोहब्बत रसूल के तकाजे पूरे नहीं होंगे। जब ये बात पूरा हो जाए कि अल्लाह के रसूल की बात है, फिर माननी पड़ेगी। ये आयत कब नाजिल हुई थी, खुद ही बताते हैं, अब्दुल्लाह इब्न जुबैर खुद ही बताते हैं कि मेरे वालिद से एक अंसारी से कुछ तू महीने हो गई बाग की सिंचाई के बारे में। बाग सींचना था, पहले मेरा बाग था, उसके बाद अंसारी का बाग था, तो अंसारी सहाबी का, तो उन्होंने कहा
कि भाई पानी रोको मत। ये होता है कि मोड़ करके नाली खींच लेते हैं फिर छोड़ते हैं, ऐसा होता है, अभी होता है गाँव वगैरह में। कहीं नहर होती है तो पहले अपनी तरफ पानी खींच लेते हैं, फिर कोई तो सिर्फ खींचते हैं, रोकते नहीं पानी। और अगर पानी कम है तो मोड़ देते हैं, तो वरना फिर मुड़ेगा नहीं। ज्यादा है तो फिर तो पानी आगे भी जा रहा है, बागों में भी आ रहा है। तो वो नाली का पानी अगर उसको ना मोड़े बाग की तरफ तो पानी आगे चला जाएगा, इधर नहीं आगे। तो रोक करके फिर मोड़े थे अपनी बाग की तरफ। तो उन्होंने कहा पानी छोड़ दो, अपने में ठीक है, काट लो ठीक है, लेकिन वो पानी रोक दो, छोड़ दो, इधर भी आता रहे थोड़ा थोड़ा। उसके बाद बात बनी नहीं, अल्लाह के रसूल के पास पहुंच गए दोनों लोग। अल्लाह के रसूल ने फैसला किया और हज़रत ज़ुबैर से कहा कि अब बाग अपना सैराब कर लो, फिर पानी छोड़ देना और इनके खेत में चला जाए। तो उन्हें ये लगा अंसारी साहबी को कि अल्लाह के रसूल ने रिश्तेदारी निभाई है, तो कहा कि आपके फूफीज़ाद भाई है ना, इसलिए आपने ऐसा किया है। तो क्योंकि अल्लाह के रसूल चेहरे देख के फैसले नहीं करते थे, यही तो खूबी थी आपकी कि आप हक बोलते थे चाहे अपनों के खिलाफ जाए। तो अल्लाह के रसूल को गुस्सा आ गया इस बात पर और चेहरा बदल गया, चेहरे की रंगत बदल गई और कहा ज़ुबैर से कि पानी सींचो बाग को, और इतना सींचो जब तक दीवार के बराबर पानी ना आ जाए, उसके बाद छोड़ना। मतलब वो भी इंसाफ ही था, वो जुल्म नहीं था। भाई पहले जिसका है वो जितना, हालांकि पहले कहने का मतलब है थोड़ा सा जरूरी सींच लो, फिर जाने दो, बाद में सींचते रहना। लेकिन फिर कहा कि अब तो पूरा सींचो जब तक बाग के बराबर, दीवार के बराबर पानी ना आ जाए। तो अगर अल्लाह के रसूल को कोई फैसला आ गया नहीं मानते हैं तो फिर यह है कि ईमान को खतरा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आने के बाद आमन्ना व सद्दक़ना कहना है, उस पर अमल करना है और खुले दिल से उसको मानना है। हज़रत उमर इतने सख्त होने के बावजूद उनको वो चाहते नहीं थे कि उनकी बेगम और बीवी थी, उनकी एक बीवी जाती थी और फजर मस्जिद में पढ़ने के लिए जाते थे, रात में वो पसंद नहीं करते थे मस्जिद में जाना। और एक ने कहा, एक औरत ने कहा साहबिया ने कि जब आपको मालूम है कि आपके शौहर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन जब वो पसंद नहीं करते हैं मस्जिद में आना रात को आपके लिए, तो आप क्यों आती है? तो उन्होंने कहा कि अगर वो पसंद करते तो रोकते क्यों नहीं? उन्होंने तो एक बार भी हमें नहीं रोका। तो उन्होंने कहा कि बस महज अल्लाह के बस ये हदीस उन्हें नहीं रोकने, बस ये हदीस उन्हें मजबूर कर देती है, ला तमनऊ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, ऐ लोगों अल्लाह की बंदियों को अल्लाह के घर से ना रोको, मस्जिद में जाती है तो जाने दो, अगर इजाजत मांगे तो इजाजत दो। यह हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर का भी कहना था। तो हदीस हज़रत उमर, हालांकि हज़रत उमर ने एक बार फैसला किया, नहीं जानते थे दियत का फैसला किया, उंगली कटने के बारे में उनके पास हदीस नहीं थी। उन्होंने फैसला किया अंगूठे के 15 ऊंट, इन दोनों उंगलियों के 10-10 ऊंट, इसके 9 ऊंट, इसके 6 ऊंट दियत में देना पड़ेगा, कोई उंगली काट दे तो। हदीस नहीं मालूम थे, साहबी ने उनको बताया कि अमीरुल मोमिनीन हमने तो जो हदीस लिखी है अल्लाह के रसूल से एक जगह लिखी, उन्होंने दिखाई कि देखिए हमने जो सुनी लिखी है उसमें यह है कि सारी उंगलियों की दियत बराबर है, 10-10 ऊंट सब में देने पड़ेंगे, चाहे उंगली काटे चाहे उंगली काटे, 10 ऊंट सब में है। फिर वो मतलब इतना सख्त होने के बावजूद शरीयत के मामले में फौरन नरम पड़ गए, दुआ भी देते थे सामने वाले को कि तुमने मेरी रहनुमाई की, तुमने मेरी इस्लाह कर दी। तो अब ये है कि हदीस मिल जाने के बाद सहाबा किराम में इतनी नरमी और लचक आ जाती थी और मामले बड़े सख्त होते थे। वो अब्दुल्लाह इब्न उमर ने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि जब मस्जिद को जाने के लिए इजाजत मांगे तो दे दिया करो। उनके 2 बेटे थे, एक बिलाल एक वाकिद। बिलाल ने कहा कि मैं तो इजाजत नहीं दूंगा। तो इतना बुरा भला कहा कि जो रावी हदीस बयान करते हैं कि इतना मैंने गुस्सा कभी अब्दुल्लाह इब्न उमर को नहीं देखा, जितना गुस्से में उसे डांट रहे थे अपने बेटे को कभी नहीं देखा, जबकि वो बेटा शादीशुदा था। मतलब इससे ये अंदाजा था कि अगर बेटा गलत कर रहा है तो बाप डांट सकता है, और बल्कि दूसरे बेटे को वाकिद जो दूसरा बेटा था अब्दुल्लाह इब्न का, उसने कहा कि तब तो वो उसको एक आड़ बना लेंगे। जैसे आजकल लोग कहते हैं ना कि कितना होगा, और कहीं भी जाए कितना नहीं है, बाजारों में जाए, जुमेरात के बाजारों में तो पैर रखने की जगह नहीं होती, शादियों में जाए, कहीं भी फंक्शन में जाए, वहां कितना नहीं है। अल्लाह के घर की जब बात आती है पता नहीं कहां से ये फलसफी लोग आ जाते हैं, कितना है, जबकि महफूज जगह उनके लिए होती है, करनी चाहिए। यहाँ जहां इजाजत वहां कितना है, कोई अभी नहीं, बस एक वैसे वाकिद ने भी कहा तब तो वो फितने के लिए रास्ता बना लेंगे। उसके बाद वाकिद को मारा और कहा कि मैं तुमसे बात ही नहीं करूंगा इतने दिनों तक। इतना गुस्सा हो जाते थे जब कभी अल्लाह और रसूल की बात सामने हो और कोई आदमी ना माने वाज़ेह हुक्म आ जाने के बाद, तो बहुत नाराज होते थे साहबे किराम। और एक मर्तबा पूछा, एक यमन से एक हाजी आया हुआ था, उसने पूछा अब्दुल्लाह इब्न उमर से, आखिरी बात है, उसने पूछा अब्दुल्लाह इब्न उमर से कि इस्लाम हजर असद का बोसा देना जरूरी है? तो उन्होंने कहा कि रायत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम हुए कबिलहु, मैंने देखा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हाथ लगाया और बोसा दिया। इस्लाम मतलब हाथ से छूना और बोसा देना, मैंने देखा है। तो उसने कहा कि अगर भीड़ में फंस जाऊं, अगर भीड़ मुझ पर गालिब आ जाए, अगर मैंने वहां पहुंचा, बहुत गुस्सा हुए। कहा कि इजाल
इन इजाल मतलब इसको जो अगर कहते हो इजाल इंसा, इसको तुम फी अमल ले जाओ, ये अगर वाला जो है ना, अगर ऐसा हो जाए अगर वैसा हो जाए, सुन्नत के अपनाने में ये बहाने तुम यमन में रखो। मैं तो अब भी वही कहता हूँ, राय तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलीमुहु व यक़ब्बिलुहु, मैंने नबी को देखा है, उन्होंने इस्तेलाम किया है और उसको बोसा दिया है, मैंने नबी का अमल बतला दिया। अब अगर मगर तुम यमन में रखो, यहाँ मैंने नबी का अमल बतलाया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हजर अस्वद का बोसा दिए, उस वक्त उन्होंने तारीखी बात कही अकीदे के ताल्लुक से, कहा कि इन्नी आलम अन्नका हजर ला तज़ुर वला तनफा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ, हजरत अस्वद को मुखातब करके कहा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि तू एक पत्थर है, ला तज़ुर वला तनफा, न तो फायदा दे सकता है न नुकसान दे सकता है। वलौला अन्नी रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतु, अगर मैंने ना देखा होता कि नबी तुझे बोसा दे रहे तो मैं बोसा ना देता। उसके बाद आगे कहा मालका मिन रमल मालिया मिन रमल, अब मैं रमल क्यों करूं, लक़द अरायनल मुशरिकीन, उस वक्त मुशरिकों को जो हमने दिखाया था, मुशरिकीन ने कहा था मदीने पहुंच करके बुखार मैंने तोड़ दिया है, तब अल्लाह के रसूल ने कहा था कि जब ये कोने पर बैठे, जिस कोने पर मुशरिकीन मक्का बैठते हैं, तुम्हें देखने के लिए तुम वहां से वहां तक जो रुकने यमानियन है उन दरमियान शान हिला के चलना है, उसको रम दुल की चाल कहते हैं, रम इस तरह करके शान हिला करके चलना। उस वक्त एक खास सबक था, उनको दिखाना था मुशरिकीन को कि हम बीमार नहीं हुए, हमारी सेहत बाकी है। हजरत उमर इसी बात की तरफ इशारा करते हैं कि अब तो वो जमाना नहीं रहा, अब हमारा गलबा है, अब न वो मुशरिकीन है न वो हमें देख करके मजा लेने वाले कुफार मक्का यहाँ पे, अब तो सबक खत्म हो गया, अब हम क्यों करें रब, अब हम क्यों इस तरह चलें। फिर कहते हैं लेकिन चलेंगे, अगर चौवा सबाब खत्म हो गए, लेकिन चूंकि नबी का अमल है, नबी की हदीस है, इसलिए हम आज भी उसका अमल करेंगे बिना सबब बिना पसे मंजर का ख्याल किए हुए। ये वो अक़वाल है साहबे किराम के ताल्लुक से, उनके जज्बे हैं कि हम उनको पढ़िए तो हदीस को किस तरह से समझना है, कैसे अमल करनी है, सुन्नत किसे कहते हैं, इताअत किसे कहते हैं, इत्तिबा किसे कहते हैं, ये हमें समझ में आ जाएगा। इत्तिबा बहुत अहम है, नबी के अमल जैसा अगर अमल नहीं है तो वो चीज रद्द करने के साथ साथ अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत भी नहीं मिल पाएगी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह, नबी इनसे कहिए कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तो मेरी इत्तिबा करो, नबी की तरह फिर अमल करना होगा, ये युहब्बिकुमुल्लाह, तब अल्लाह मोहब्बत करेगा, वह फिर तुम दोनों लोगों तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। और अगर जानने के बाद कि यह नबी का बात है, अगर हमने तावीलें की, इज्तिहाद और फतावे के आड़ में हमने नबी की बात को ठुकराया, या हम इज्तिहाद या लोगों की बात को नबी की बात से बराबर भी ले आए, तो अज़ाब इलाही का डर है, अल्लाह के अज़ाब का डर है। फलियहज़रिल्लज़ीना युख़ालिफ़ूना अन अम्रिही अन तुसीबहुम फ़ितना, उन लोगों को जो उसके हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हैं उन्हें डरना चाहिए कि उन्हें कोई आजमाइश में अल्लाह ना डाल दे उन्हें, या कोई दर्दनाक अजाब ना आ जाए उनके ऊपर। तो मामूली नहीं है तावीलात के जरिए से नबी की बात को ना मानना, या चोर चुरा करके नबी की बात को दबा देना, चोर दरवाजे ढूंढना अपने मसलक और अपने फतरों पे अमल करने के लिए, ये तमाम चीज वो है जो मोहब्बत रसूल के तकाज़े से टकराती है। अगर मोहब्बत रसूल का दावा है तो इताअत भी करनी है, इत्तिबा भी करनी है, उसके साथ साथ उसवे हसना, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर मामले में उसवे हसना भी मानना है। और जब हदीस पता चल जाए, नबी की बात पता चल जाए, तो आमना सद्दक़ना कहते हुए खुले दिल से कबूल भी करना है, वरना तकाज़े सिर्फ ज़बानी दावे होंगे, खोखले दावे होंगे, कोई फायदा ना होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को मोहब्बत रसूल के तमाम तकाज़ों को समझने और अमल करने की तौफीक दे, आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल कुरान व नफ़अनी व इय्याकुम बिल आयाति व ज़िक्रिल हकीम, इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुन मुजीबुर रहूफ़।